ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਣੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਣੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਰਹਾਉ ਉੱਤਮ ਧੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਣ ਭਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਣ ਭਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ। ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਗੁਰ ਦਈ ਮਿਲਾਏ ਭਿਖਾ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਮਿਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬੜੇ ਮਿਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਬੱਝ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਰਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਥਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਇਉਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜੁਦਾ-ਜੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਲੀ ਲੈਣੀ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਖੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੰਡੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡਨ। ਖੰਡਨ, ਮੰਡਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸੈਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਗ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਕਮਲਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਥਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 1996 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 15, 20, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਭੋਗ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਣ, ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਡਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨਮੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਰੌਲ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਨਮਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦਾਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਤ ਨਹੀਂ। ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਰਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾਪਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਧੂਫ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ, ਦੀਵਾ, ਕ੍ਰਿਤ, ਘਿਓ, ਧੂਪ, ਦੀਪ, ਕ੍ਰਿਤ, ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਸਨ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਨ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਰਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਰਸਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੁਲਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾੜਨਾ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਉਨ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਨਕੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
बड़ा कनकोर वातावरण होंदा है। उत्थे गुरु नानक साहब का एक गुरुद्वारा भी बनया जिन्होंने पिछे जे ढाण का यतन किया गया सी। फिर उत्थे निहंग सिंह फौजां पहुँच गई सन। गुरु की लाडली फौज ने फिर वो स्थान बचाया। साध संगत जी, ये जिहड़े निहंग सिंह जथेबंदी ना, गुरमुखो सत्कार करिया करो। ये इन्फेंट्री है सिखां दी। जिस तरह फौज विच अगे होकर लड़न वाली एक कोर हुंदी है ना, इन्फेंट्री, ये सिखां दी इन्फेंट्री। हर जथेबंदी च कोई ढिल मट हुंदी है। हो सकता है उन्हां च भी होवे, साडे च भी होवे, पर यह वो संप्रदाय जदों किसी ने सार्वजनिक स्थान ते बीड़ी पीनी, समोकिंग करनी, ते गुरु की लाडली फौज ने घूर के वेखना, दुष्टा खोती चुंगना, उन्हें डर के बीड़ी थले सुट देनी, नाले पैर नाल मसल देनी। हुण इन्हां ये गुरु की लाडली फौज नूं इग्नोर करन करके वो तुहाडे मूँह दे उत्ते उत्थे धुआं मारदे ने। पंजाब दे विच असीं अपमानित कीता निहंगा सिंघां नूं। निहंगा पट्ठे ना वड्डी, निहंग ने पट्ठे अपने मੱਝਾਂ नूं थोड़ा पाने ने, दल दे विच जिहड़े घोड़े ने उहनूं पाने ने। वो पंथ दे काम आउणे, उहदा अपना थोड़ा कुछ उहदे च। निहंगा पट्ठे ना वड्डी, निहंग कित्थों पट्ठे वड्डे बई? निहंग नूं किहड़ी जमीन अलाटमेंट होई है गौरमेंट वल्लों? जे तुसीं रोज़ 10 पंडां पट्ठे वढ के ले जांदे हो, एक पंड लै गए ने तो कितना को फर्क पै गया? ये थोड़ा जिहा कौम नूं इस पासे ध्यान देने की जरूरत है। सिखां दी इन्फेंट्री है, अपनी इन्फेंट्री नूं संभाल लो, सत्कार करना चाहिए प्रेमियों। खैर उत्थे फिर निहंगा सिंघां ने बच के उस पहुँच के स्थान बचाया। साध संगत जी, गुरु नानक साहब के स्थान नूं ढाण डए सन। जदों गुरु नानक साहब गए तो आखन लगे जी चलो आरती, हजूर अंदर जाके खड़े हो गए, इन्हां ने थालियां विच समग्री रख ली तो आरती शुरू हो गई। गुरु नानक साहब अडोल खड़े रहे, उन्हां थाली नूं हत्थां च ना लिया, ना ही उपर नीचे कीती। जिस वेले आरती की समाप्ति हुई तो पंडे इकट्ठे होकर कहन लगे जी तुसी आरती नहीं उतारी। सच्चे पातशाह कहन लगे भी तुसी क्या सी जगन्नाथ की आरती करनी है, ते तुसी जगन्नाथ की आरती तो कीती नहीं, मैं की करदा? आखन लगे जी असीं ते जगन्नाथ की आरती कीती है, मूर्ति वाल हथ करके। ते सच्चे पातशाह कहन लगे भाई ये जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ ते अकाल पुरख वैगुरू है। आखे फिर तुसी ओहदी आरती कर लेंदे। महाराज कहंदे ओहदी आरती एडा वड्डा परमात्मा, ओहदी आरती लई छोटी जी थाली, छोटे छोटे दीवे, नगूणी जी समग्री, ओहदी आरती इदां नहीं हुंदी। फिर ओहदी आरती किदां हुंदी है? तां हजूर कहन लगे काले पिया नहीं गल बनदी, बैठो मैं दसना किदां हुंदी है। पंडे बैठ गए, भाई साहब ने रबाब वजाई, तां हजूर ने कीर्तन किया, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। इत्थे साध संगत जी जिहड़ा गगन तो बाद मैं शब्द है ना, मम्मे नूं दलावां, इत्थे जे कोशिश करके इदां हो सके भी बिंदे का उचारण इत्थे ना होवे ते फिर ज़्यादा वधिया। एक तो हो गया गगन मैं, गगन मैं दे अर्थ ने गगन विच, असीं कहना गगन मैं, गगन मई, गगन रूपी। गगन मैं नहीं, गगन विच नहीं, गगन रूपी। गगन मैं थाल रवचंद दीपक बने। आखन लगे अकाल पुरख की आरती वास्ते ते आकाश हैगा, ते कहन लगे जी चलो ठीक है, थोड़ी देर लिए मन लिया भी असी थाली लेने आ, ते तुहाडे परमात्मा की आरती लई गगन थाल है, आकाश थाल है, असी दे विच दीवे भी रखने आ, फिर तुसीं दसो दीवे किहड़े ने? तां हजूर कहन लगे रव चंद दीपक बने। उहदी आरती तो आटोमैटिक हो रही है, उहदी आरती करन दी जरूरत की है? फिर उहदी आरती नगूणी जी समग्री नाल किवें हो सकती है? रवचंद दीपक बने, चलो ठीक है बाबा जी रवचंद दीपक बने, असी तो फिर विच मोती भी रखे ने, तुहाडी आरती फिर मोतियां दा रोल कौन अदा कर रहा है? हजूर कहन लगे तारिका मंडल जनक मोती। आ तारियां दा जिहड़ा समूह है चमक रहे ने मोतियां वांगू, ये उहदी आरती विच मोती ने, क्योंकि वह बड़ा विशाल है, लिहाजा उहदी आरती दे मोती भी वड्डे वड्डे होने चाहिए ने।
चमकदार होने चाहिए ने। फिर असी तो धूफ भी दिखाई है, तुहाडी आरती च धूफ किहड़ी है? महाराज कह लगे धूप मलियान। इत्थे विश्राम दे के जे पाठ करिए तो ज़्यादा वधिया गल है। अच्छा, धूप मलियान की है? भारत विच एक हिस्सा है भूगोलिक दृष्टिकोण तो, उन्होंने मल्य पहाड़ कहते हैं। मम्मा, लल्ला ते यय्या, मल्य पहाड़ों के भी नाम ने ना। हिमालय पर्वत, कोहतूर पहाड़, शिवालिक दीयां पहाड़ियाँ। इस प्रकार साउथ विच एक पहाड़ है, उसका नाम है मल्य। मल्य पहाड़ जिहड़ा है उसकी तसीर ऐसी है, मिट्टी इस तरह की है, एनवायरमेंट उत्थों की इस तरह की है, उत्थे चंदन की लकड़ बहुत ज़्यादा होती है। मल्य पहाड़ ते जे मैं कह दियाँ भी 95% जिहड़े पेड़ ने, दरख्त ने, वो चंदन दे ने ते कोई अतकथनी नहीं। हुण भी अज दी तरीक विच भी सब चंदन ही चंदन है। तो ये जिहड़ा मल्य पहाड़ है, गुरु नानक साहब कहते हैं जदों हवा इन्हां दरख्तां नालों खह के लंघदी है ते खुशबू नाल सराबोर हो जाती है, फिर वो जिधर जिधर जाती है वातावरण को खुशबूदार करती जाती है। ये परमात्मा की आरती विच मानो धूप की भूमिका निभा रही है। धूप मलियान लो पवन चबरो करे, ते जिहड़ी पौण है वो चौर कर रही है। वो कहते असी चौर भी करने आ। महाराज कहते परमात्मा ते हवा हर वक्त ही चौर कर रही है। फिर असी फुल भी रखने आ। महाराज कह लगे सगल बनराए फुलंत ज्योति, सारी बनस्पति खिड़े हुए फुल ये परमात्मा की आरती विच फुलों की भूमिका अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। लिहाजा उसकी इस तरह आरती करने की जरूरत नहीं। धूप मलआन लो पवन चबरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी, आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। अच्छा, असी टलियां वजाने आ ते तुसी साज किहड़े वजांदे हो नाल? महाराज कह लगे अनहता शब्द वाजंत पेरी। पेरी कहंदे एक नफीरी जी साज है जिहड़ा अंदर अनहद नाद वजदा है, उही मेरी आरती विच टलियां दा काम, खड़तालां दा काम और होर कई प्रकार के साजां दे जिहड़ी धुन है वो मेरे अंदर एक अनहद नाद वज रहा है। वाजंत पेरी कैसी आरती होए भव खंडना, सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत, नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध विचलत मोही, सब में जोत जोत है सोए, तिस तै चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो। फिर ਉਹਦੇ सरगुण स्वरूप का भी जिक्र कर दिता बई ਉਹਦੀਆਂ हज़ारां अखां ने, ਉਹਦੀ एक भी अख नहीं, ਉਹਦੇ हज़ारां नक ने, ਉਹਦਾ एक भी नक नहीं, ਉਹਦੇ हज़ारां पैर ने, ਉਹਦਾ एक भी पैर नहीं। सरगुण स्वरूप च सारियां अखां नक पैर ਉਹਦੇ ने ते निर्गुण स्वरूप च कोई भी नहीं। वो सरगुण स्वरूप सब कुछ भोग रहा है, फिर वक्रे तौर पर की जरूरत है? ये गुरमत का फलसफा है। दुध चढ़ाने की जरूरत है जी? दूध तो बछड़ा थनों बटा रहे हो, उत्ते पहले ही झूठा हो गया। फूल भवर भौरियां की सुगंधी उन्हें खिमा करना, फुलों की सुगंधी उन्हें भौरा बन के पहले ही लै ली है। माई गोबिंद पूजा कहा लै चढ़ावो, अवर ना फूल अनूप ना पावो। इस तरह के फुल है ही नहीं जिहड़े उहदी पूजा विच चढ़ाए जा सकन। मैला घर बेरे हैं भुयंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। इस प्रकार गुरमत ने सानू ये सेधा बख्शिश कीतियां। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस वास्ते अज भगत सैन जी महाराज कह रहे ने धूप दीप कृत साज आरती। आरती करन वास्ते साज के बना के इकट्ठियां करके चीज़ां जिहड़ी आरती करते ने, धूप दीवा घ्यो देसी इत्यादि, उहदी थां ते मैं वाहिगुरू तो सदके जांदा। यानी जिहड़ा अपने वाहिगुरू तो कुर्बान जांदा है, हौं कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, हौं कुर्बाने जाऊं, उन्होंने फिर आरती करने की नहीं जरूरत।
मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को। हे हरि हे राजन हे राम, तेरी मेहर नाल मेरे अंदर सदा तेरे नाम सिमरन का आनंद मंगल हो रहा है। सिमरन नाल ही आनंद हो रहा, इसलिए मैनू आरती करके आनंद लैण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनू तो तेरा आनंद प्राप्त हो ही रहा है। और वैसे भी जिहड़ा आनंद है वो नाम के माध्यम नाल है। सिखिज्म का यह सिद्धांत है कि आनंद की प्राप्ति वास्ते गुरु का दिता होया मूल मंत्र जप के ही आनंद तक पहुँच सकीदा है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज छेती मन वजियां वाधाइयां। और फिर राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईयां। शब्दों तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। आनंद की प्राप्ति आरती के माध्यम नाल नहीं, गुरु के माध्यम नाल जिन्हां नूं नाम की दात प्राप्त हुंदी है उहदे विच आनंद है। उंज हजूर कहते ने आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते, किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। जदों अखां विच ज्ञान का सुरमा पाया तो फिर सही दिसन लगा तो मेरे कर्म कांड आरती इत्यादि वो सब मेथों छुट गए। इसलिए मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को। नित मंगल राजा, राजा मैंने मालिक को दा भाव बख्शिया होया, उहदा बख्शिया होया मैनू मंगल प्राप्त हो रहा है। हे हरि हे राजन हे राम, तेरी मेहर नाल मेरे अंदर सदा तेरे नाम सिमरन का आनंद मंगल हो रहा है। ये रहाव वालियां पंक्तियां ने। दूजा तीजा ते चौथा तीन पदे संखेप शब्द है। मैं बचे हुए समय विच तुहाडी नज़र करा। ऊतम दीरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती, क्योंकि आरती विच वो दीवा भी जगाते ने और फिर दीवे विच बत्ती भी पानी पैंदी है। तो महाराज कहते ने हे कमलापति, तेरा नाम ही मेरे वास्ते दीवा है, तेरा नाम ही मेरे वास्ते बत्ती है। गुरमत विच जिहड़ा दीवा है उसका रॉ मटीरीयल ही होर है। जिवें गुरु नानक साहब का ही बचन है, आ दिवाली आ रही है ना, बहुत सारे दीवे जगाए जाने ने, प्रकाश किया जाना है और एक शब्द भी बड़ा गाया जाना है, पौड़ी भाई गुरदास की, दिवाली दी रात दीवे बालियां। तो वो वैसे उन जो उहदा पौड़ी का दिवाली नाल कोई संबंध है नहीं, जो गौर नाल पढ़ीए तो। खैर, अंदरूनी दीवा किवें जगना है भी गुरु नानक साहब ने सानू सदियां पहला जुगत दसी सी भी पोथी पुराण कमाईए। धार्मिक ग्रंथां नूं कमाना है, कमाण तो पहला पढ़ांगे विचारांगे फिर कमावांगे। पोथी पुराण कमाईए भौ वट्टी इत तन पाईए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ पानी है वो परमात्मा का अदब बनाना है। जोत किवें जगानी है, गुरु नानक साहब का सिद्धांत। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ पा के उन्होंने अग भी लानी पैंदी है, जगाना भी पैंदा है। महाराज कहते ने सच बूझण आण जलाइए, सच नूं बुझ लैना, सच नूं समझ लैना। सच की है? मरना सच ते जिउणा झूठ, ये समझ में आ जाए। सच बूझण आण जलाइए, संसार की असलीयत की है? सच बूझण, मैं कौन हाँ, कित्थों आया हाँ, मेरे जीवन का प्रयोजन की है, मैं आत्मा हाँ। ये भी गल समझण वाली है। जिहड़े साडे तुहाडे नाम ने, ये साडे प्रॉपर नाम नहीं गे। एक शॉर्ट टर्म नाम ने, जन्म तो मौत के विचकार ये नाम रहेगा,
फिर हौली हौली नाम भुल जाएगा। आप जितने बैठे हाँ पिता का नाम याद होगा, दादे का होगा, वध तो वध पड़दादे का होगा, किसी को एक दो होर होणगे। हौली हौली ये नाम ही मर जाते हैं, नहीं याद रहेंगे, क्योंकि मनुख स्वार्थी बहुत है। ये नाम ही वो ही याद रखता है जिदे विच इहनूं कोई लाभ होवे। किते पुछ लिया कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है वेचनी है तो फिर की करांगा, पापा मेरे दादे का की नाम हुंदा सी, उहदे पिता का की नाम, उन्हां कोई याद कर लिया, उदों अगां तो जरूरत ही नहीं पैंदी की करना। लिहाजा नाम भी मर जाते हैं। आया गया मोया नाम, पिछे पत्तल सद्यो काम, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुब्बा संसार। ये साडे जिहड़े नाम ने ये आरजी नाम ने, टैंपरेरी नाम ने। असल नाम मेरा तुहाडा साडा सारियां दा इक्को ही है, और वो है आत्मा। मैं भी आत्मा, तुसी भी आत्मा वा। असी तमाम लोग दरगाह चों आए हैं, नाम आत्मा है, आयो सुनन पढ़न को बाणी। प्रयोजन की है? बाणी पढ़नी है, विचारनी है, जीवन का प्रयोजन ये है। सो ये समझ आ जाए तो ये समझ लो असी सच नूं बुझ लिया। पोथी पुराण कमाईए, पाओ वट्टी इत तन पाईए। हर वक्त परमात्मा के अदब विच विचरीए, ये मानो वट्टी पै गई है। सच बूझण आण जलाईए, ये तेल दीवा इउं जलै, कर चानण साहिब तो मिले। दर्शनां दी बड़ी गल हुंदी है जी, दर्शन कराओ। महाराज कहंदे चानण कर, वो तेरे कोल खड़ा है। जिवें ही तू रोशनी करेगा तेरा हासा निकल जाएगा, तुसी तो कोल ही खड़े सो। और तू कहेगा साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। अच्छा किदां असीं होर तरह प्रिपेयर कीता? कुछ फिजिकली दीवा थोड़ा जगना है, भरमगढ़ अंदरों टुटना है, अंदरों अज्ञानता दूर होगी, ज्ञान आएगा। जिवें ही ज्ञान आएगा ना, जिहड़ा भी अगों आ रहा उहदे चों तैनूं परमात्मा दिसेगा। परमात्मा दे दीदार हो गए। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सरगुण स्वरूप विच ये सब गोबिंद का ही रूप ने। होर किहड़ा गोबिंद पालना? इन्हां विचों ते तैनूं चोर दिसदे ने, शैतान दिसदे ने, दुश्मन दिसदे ने, विरोधी दिसदे ने, फिर किहड़े परमात्मा नूं वेखना चाहुंदा है? जदों चानण करेगा, ज्ञान का दीवा अंदर जगेगा, तेरे अंदरों नफरत खत्म हो जाएगी। तेनू लोगों के अवगण नहीं दिसणगे, तेनू सारियां च गुण नजर आउणगे, सारे परमात्मा का स्वरूप दिसणगे। पोथी प्राण कमाईए, भौ वट्टी इत तन पाईए, सच बूझण आण जलाईए, ये तेल दीवा इउं जलै, कर चानण साहिब तो मिले। इस वास्ते ऊतम धीरा निर्मल बाती, मैल रहत बत्ती जिहड़ी रूह दी वट के विच पांदे हुंदे सन, अजकल तो रेडीमेड भी आ जांदियां, वटणियां नहीं पैंदियां, मिल जांदियां ने बाजार विचों। निर्मल बत्ती वो भी तेरा नाम है, और उत्तम दीवा वो भी मैं तेरे नाम नूं बनाया। आरती करन लई मैं किसी दीवे का अरेंजमेंट नहीं करता, किसी बत्ती का भी इंतजाम नहीं करता, क्योंकि मैं इस आरती च यकीन ही नहीं रखता। सिख फिर भी आरतियां करी जाता है, अखौती सिख, और फिर बड़े फकर नाल। ये वैसे रुस्से हुए बंदियां दी निशानियां ने। 1999 की विसाखी नूं एक मुहिम चलाई भी सारिਆਂ ਨੂੰ अमृतधारी बनाना है। एक सिंह हुंदा सी साडे नाल, वो विटर गया, वो कहन लगा भी मैं तुहाडी ये मुहिम पूरी नहीं होण देनी। असीं आख्या भी तू की करेगा? वो कहन लगा भी मैं छकना नहीं अमृत, तुसीं ये नहीं कह सकोगे भी सारी कौम नूं अमृतधारी बना लिया। मैं कहांगा मैं अजे नहीं छकिया। गुरु नानक कहंदा है भी ये आरती नहीं करनी। रुसिया होया सिख गुरु के अगे खड़ के कहंदा भी लै गुरु तू कहंदा करनी नहीं, मैं तेनों दंदियां झंगाणियां ने,
तेरे सामने खड़ के आरती करनी है, मैनू रोक के दिखा। ये हाल है। और साधारण लोग नहीं, चंगे चंगे कहते कहते लोग। उत्तम धीरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमलापाती है। कमलापति है वैगुरु मेरे वास्ते, तू ही दीवा तू ही बत्ती है। मैनू वखरे दीवे बत्ती के प्रबंध की जरूरत नहीं है। रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै। जो मनुख सर्व व्यापक परम आनंद रूप प्रभु के गुण गाउंदा है, वो प्रभु की भगती की बरकत नाल प्रभु दे मलाप का आनंद माणदा है। रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै। अखीर च बाबा जी कहते ने, मदन मूरत भै तार गोबिंदे, सैन भणै पज परमानंदे। सैन नाम है भगत जी का। होर भी कई थावां ते जिक्र आउंदा, जिवें सैन नाई बुतकारिया, वो घर घर सुनिया। भगत सैन जी कहते ने, हे मेरे मन उस परम आनंद परमात्मा का सिमरन कर। सैन भणै भज परमानंदे, परम आनंद वैगुरु नूं भज, वैगुरु का सिमरन कर। जो सोहणे स्वरूप वाला है और संसार के डरां तो पार लंघाउण वाला है और सारी सृष्टि की सार लैण वाला है। गोबिंदे, गो मैंने धरती, बिंद मैंने संभाल करने वाला। जदों गोबिंद शब्द आवे, उहदे अर्थ ने धरती दे जीवां की सार लैण वाला। ये ग्लोबल नाल जुड़ी हुई गल है, पूरे ब्रह्मांड नाल नहीं। उहदे वास्ते फिर होर शब्द ने। जदों पूरे ब्रह्मांड नूं कवर करते हैं, वो फिर डिफरेंट शब्द ने। गोबिंदे ग्लोबल नाल रिलेटेड है। गो मैंने धरती, बिंद मैंने सार लैण वाला। तू धरती दे जीवां की सार लैण वाला है, भाव तू सारियां दी परवरिश करने वाला है। तो समुचे शब्द विच आरती नूं कंडैम करके भगत सैन जी ने परमात्मा तो सदके होण दी, परमात्मा का सिमरन करन दी सानू जाच दसी। तो सिख ने ये सनातन मत वालियां, हिंदू मत वालियां जिहड़ियां आरती करन दा तरीका है, भाई वो गुरमुखो उन्हां नूं मुबारक है। सिखिज़म विच ये वेद नहीं गा। अज सानू भगत सैन जी ने इस शब्द के माध्यम नाल उपदेश बख्शिश किया है। सो प्रेमियों, इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां, बेनतियां विचारां करदियां होइयां बेअंत भुलां गलतियां वास्ते दास खिमा दा जाचक है। सो आओ गुरु सवारियां तो अगला प्रोग्राम सरवण करिए जी। अंत गुरु फतेह की सांझ करते हुए आग्या बख्शिश करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।